Good morning class 12. Welcome back once again to our online classes, and today we are going to continue the next part of the video in the chapter magnetism and matter. In last class we have discussed about the bar magnet and solenoid. What is the difference between the bar magnet and a solenoid? इसके पहले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि बार मैग्नेट और सोलिनॉइड में डिफरेंस क्या है. And also we have discussed about the earth magnetism, and then we have discussed about the magnetic field lines. हमने ये सारे टॉपिक्स पिछले क्लास में डिस्कस किए थे. Now we are going to discuss about the torque. What is a torque? In this class we will learn about the torque and the electrostatic analogs के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Let me start the topic. The torque in a magnetic field in a bar magnet means if a bar magnet is kept in the magnetic field. एक magnetic field में एक bar magnet को हम रख देते हैं like this. If this is a uniform magnetic field, अगर ये एक हमारा uniform magnetic field है and bar magnet is kept here with the angle theta, then what will be the value of torque generated? इसमें कितना torque generate होगा? जो torque की value होती है that is a tau is equal to force into perpendicular distance. That is the value of torque. In this case, here it will be the north pole and here it will be the south pole. This is the value of torque, the force into perpendicular distance. Now, what is the force here? We know the very well. The value of torque we have discussed in the last classes. That is the mb sin theta. हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी m इंटू बी इंटू साइन थीटा. m हमारे यहाँ पर क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज इक्वल टू आई इंटू ए. ये हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि व्हाट विल बी द टॉर्क, द वैल्यू ऑफ द टॉर्क m इन इज टाउ इज इक्वल टू m इंटू बी साइन थीटा. हियर वी विल रिप्रेजेंट द नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है कि दैट इज द वैल्यू ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क. ये हमारे रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू है. यानी रीस्टोरिंग टॉर्क का मतलब क्या होता है कि वो मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है. यानी इट इज अप्लाइंग द फोर्स एंड इट वांट्स टू रोटेट द मैग्नेट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में उसको लाने की कोशिश कर रहा है. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी पुट द कंपास हियर? क्या होगा अगर हम कंपास को यहाँ पर ला के रख दें? What will happen due to the force, due to the magnetic field lines, the compass get deflected. अगर एक कंपास को ला करके उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रख देते हैं तो फोर्स की वजह से, जो रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से कंपास का जो निडल होगा वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा. देन इट मीन्स हेयर सम अमाउंट ऑफ द टॉर्क इज ऑल्सो जनरेटेड इन द कंपास. नाउ in this case we know that in the case of the compass the restoring torque will be I d square theta upon dt square. ये हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क है इन द केस ऑफ द कंपास. हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क इन द केस ऑफ द ऑसिलेशन. सिंपल ऑसिलेशन के केस में हम लोगों ने वहाँ पे ये डिस्क्राइब किया था. नाउ इक्वेट देम, देन वी कैन से I d square theta upon dt square that is equal to minus mb sin theta. What is the value of I here? The I means moment of inertia. I means here moment of inertia. Okay, now let we move, transfer the all other values to the another side. Then d square theta upon dt square is equal to minus m into b sin theta upon I. Okay, now here we can say the value of theta is a very small, so we can write here in the place of the sin theta we will write here theta. sin theta के प्लेस पे हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? थीटा पुट कर देंगे. then what we will get again here? d square theta upon dt square that is a minus m into b थीटा अपॉन आई. ये हमारा वैल्यू डिस्क्राइब हो जाएगा m इंटू बी साइन थीटा इंटू आई. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं
तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन से कोरिलेट कर रहा है। मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है? अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन की बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उससे ये कोरिलेट होता है। इफ वी कंपेयर दीज बोथ इक्वेशन, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो इसके प्लेस पे हमारा क्या है? डी स्क्वायर एक्स, वहां पे ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर ओमेगा के प्लेस पे क्या है? दिस, और वाई वहां पे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। देन वी कैन से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर? द ओमेगा स्क्वायर इज m into b. Here we will have small m into b upon I. Then what is the value of omega? Then omega is equal to under root m b upon I. This is the value of omega that we have got from the equation. ये हमारा omega की value है, ठीक है। So we can say what amount of a torque is generated here. एक बार फिर से देख लो कि हमने किया क्या है। हमने सबसे पहले एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड लाइन में पुट किया है इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देन वी हैव ऑब्जर्व देन व्हाट द वैल्यू ऑफ द टॉर्क इज जनरेटेड हियर, दैट इज द माइनस m into b sin theta. Here negative sign is represent here the torque is the restoring torque. यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? कि जो टॉर्क हमारा है वो रिस्टोरिंग टॉर्क है, यानी इस मैग्नेट को अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है। नाउ इन द केस ऑफ द ऑसिलेशन वी नो, जब हमने यहाँ कंपास पुट किया तो ऑसिलेशन का केस है तो टाउ इक्वल टू आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर होता है। दोनों को हमने कंपेयर किया टॉर्क को, वी हैव गॉट द वैल्यू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम इंटू बी अपॉन थीटा अपॉन आई। नाउ वी हैव कंपेयर्ड दिस इक्वेशन विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से हमने कंपेयर किया, देन वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर दैट इज m into b upon I. Then what will be the value of omega? That is the under root mb upon I. ये हमारा वैल्यू है ओमेगा की। If we need to find the time duration, अगर हमें टाइम ड्यूरेशन बोला जाए फाइंड करने की, what is the value of time period of this oscillation, then how we can say here, what we will say here, we know that what is the formula for time period? The formula for time period t is equal to twice pi upon omega, but we know the value of omega is here, omega is equal to under root small m into capital B upon capital I. I is the here moment of inertia. Now put the value of omega here, we will get t is equal to twice pi upon, in the bracket it will be here mb, m into capital B upon I. So we can write here twice pi under root I upon m into b. This will be the value here. T is equal to twice pi I upon under root I upon m into b. ये हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा फॉर्मूला किस चीज का है? टू फाइंडिंग द टाइम पीरियड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू ये होगी। इफ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन स्क्वायर बोथ साइड, we will get here t square is equal to 4 pi square, here will be the I upon m into b, transfer the b, then we will get the value of magnetic field 4 pi square I upon m into t square. This is the value of time period. यानी ये हमारी वैल्यू किस चीज की है? टाइम पीरियड की है इन द केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो कितना टाइम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? 4 pi square I upon m into t square, where I is the moment of inertia, m is the magnetic moment and t is the time period here. ठीक है। अगर इसमें बोला जाए कि what will be the energy stored, which amount of the energy is stored there, अगर यहाँ बोला जाए कि कौन सी एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगी, then we will always say that potential energy will be stored here. यहाँ पे potential energy स्टोर होगी, and what will be the value of potential energy? That is the U. It will be indicated by tau into, यहाँ पे tau into d
थीटा, ये हमारी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी. नाउ पुट द वैल्यू हियर, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टाउ इज हियर m into b sin theta into d theta. Here will be the m into b integration of sin theta d theta. Integration of sin theta will be, here will be the minus, integration of sin theta will be minus cos theta, it will be then plus m into b cos theta, or we can say potential energy will be m dot b. This value of potential energy is generated when the object is kept in the uniform magnetic field. अगर एक ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर देते हैं तो इतनी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसमें जनरेट होगी. ओके, सो ये हमारा टॉपिक था, टॉर्क जनरेट करना इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होना होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनालॉग के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट में क्या डिफरेंसेस हैं. देखो बहुत ध्यान से कि व्हाट इज द सिमिलरिटीज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट. मैंने पहले ही बताया था कि मैग्नेट चैप्टर सारा इलेक्ट्रिसिटी से ही कोरिलेट करा के हम करते हैं, यानी एक बार हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया अच्छे से, देन वी विल एबल टू इजीली डिस्कस अबाउट द मैग्नेट, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी वहीं से सिमिलर होती हैं, सारी चीज़ें वहीं से हम कोरिलेट कराते हैं. इट मीन्स इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज द इलेक्ट्रिक फील्ड E. इलेक्ट्रिसिटी के केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड E यूज करते हैं, बट इन द मैग्नेट के केस में वी यूज द मैग्नेटिक फील्ड B. यहाँ पे E यूज करते हैं, वहाँ पे B यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड B यूज करेंगे. इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज द डायपोल मूवमेंट P, और यहाँ मैग्नेट के केस में हम क्या यूज करेंगे, डायपोल मूवमेंट स्मॉल m. इट मीन जो भी फॉर्मूला वहाँ पे इलेक्ट्रिक के केस में E है वहाँ पे B पुट कर दो, डायपोल मूवमेंट P के केस में m पुट कर दो, एंड इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी 1/एप्सिलॉन के प्लेस पे हम पुट करेंगे क्या, म्यू नॉट. ऑल द डिक्टो फॉर्मूला वी विल गेट हियर. जैसे इन द केस ऑफ द एक्सियल रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द केस ऑफ द एक्सियल रीजन व्हाट वाज देयर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p/r³. ये इक्वाटोरियल रीजन एक्सियल रीजन के केस में था. व्हेन द डायपोल व्हेन द वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द केस इन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, वहां पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी. अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वी हैव गॉट द बी एक्सियल 1 in the case of 1/एप्सिलॉन, we will write here mu naught/4 pi into twice small m/r³. देखो सारा चीज वही सेम है, जो हम एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में फाइंड कर रहे थे वही हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के केस में मिला. बस इन तीन क्वांटिटीज का डिफरेंस होता है, इन तीन क्वांटिटीज का डिफरेंस होता है. इट मीन्स इफ वी हैव लर्न द फॉर्मूला ऑफ ऑल द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो व्हाइल कन्वर्टिंग दीज थ्री वैल्यूज. इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेट में चेंज कर लो, B को B से चेंज कर लो, P को M से, और 1/एप्सिलॉन को म्यू से चेंज कर लो. सारे फॉर्मूले हमें ऑब्टेन हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले हमें मिल जाएंगे. नाउ इन द केस ऑफ द गॉस लॉ, जैसे वहाँ पे सारे लॉस थे वैसे सेम सारे लॉस यहाँ पर हैं. वहाँ पे हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ पढ़ा. अब वहाँ पे हमने गॉस लॉ पढ़ा. गॉस लॉ में हमें वहाँ पे क्या बता रहा था, इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वी वॉज डिस्कसिंग देयर what amount of the electric field is produced. गॉस लॉ हमें क्या बता रहा था, एक बार गॉस लॉ को फिर से हम रिवाइज करते हैं. लेट वी सी what the Gauss law was there. It means what is the similarities of the Gauss law with the magnetism. Gauss law हमें क्या बताता है, total value of flux that is a 1/एप्सिलॉन into charge q, or we can say close integration of E dot ds. ये हमारा क्या था, गॉस लॉ था. दिस वॉज अ गॉस लॉ, ये हमारा गॉस लॉ था. गॉस लॉ के केस में क्या हमने डिफाइन किया था, इफ वी पुट द स्मॉल यूनिट चार्ज प्लस चार्ज एंड वी हैव सपोज द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, हम एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस सपोज कर रहे थे, तो हम वहां पे क्या सपोज कर रहे थे, वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था, ऑल अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया इज considered as the flux.
जितनी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई इस स्मॉल क्लोज सरफेस एरिया ds से पास हो रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज द फ्लक्स देयर। वहां पे हम क्या कर रहे थे, मोनोपोल्स को यहाँ पे सिचुएट करते रहते हैं। वहां पे मोनोपोल्स यानी सिंगल चार्ज को इधर भी पॉजिटिव और निगेटिव वहां पे सिचुएट कर ले रहे थे। बस बट हेयर इन द केस ऑफ अ मैग्नेट द गॉस लॉ इज एप्लीकेबल, बट हेयर वी विल कंसीडर द बोथ पोल्स। डाइपोल्स हम इसमें कंसीडर करते हैं, यानी मैग्नेट के केस में दोनों पोल्स हमें कंसीडर करना पड़ेगा। यानी जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रही है, जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है, उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। इट मीन्स द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज जीरो। मीन्स इस अगर एरिया पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं। ये गॉस लॉ के केस में था। मैग्नेट के केस में भी सेम है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर्स टू द सरफेस एरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस टू द सरफेस एरिया। यानी गॉस लॉ हम मैग्नेटिक के केस में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस देयर वी वाज यूजिंग द मोनोपोल्स। हम एक सिंगल पोल की बात कर रहे थे, बट यहाँ पर हम डाइपोल्स की बात करेंगे, यानी बोथ मैग्नेटिक पोल्स की बात करेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ वी आर नॉट एबल टू फेच द मैग्नेट इनटू द मोनोपोल्स। कभी भी हम मैग्नेट को एक सिंगल पोल में हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब भी हम पुट करते हैं सेम पुट करते हैं, बट इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक द चार्ज वी कैन सिचुएट देयर इन द फॉर्म ऑफ द मोनोपोल्स। चार्ज को हम मोनोपोल्स के फॉर्म में सिचुएट कर सकते हैं, बट मैग्नेट को हम मोनोपोल्स में सिचुएट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स व्हाट वाज द गॉस लॉ? द गॉस लॉ वाज the closed total flux generated by the closed surface area in the presence of the electric field E is equal to 1 upon q naught 1 upon epsilon naught times of total charge q. Now in the case of the magnetic field we will write same here. In the case of magnetic field the total magnetic field lines passing through the closed surface area with the presence of the dipoles both poles of a magnet that represents here the Gauss law. ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। हमने सबसे पहले आज की क्लास में पढ़ा अबाउट द टॉर्क के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग्स। हमने कंपैरिजन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स को कैसे हम कोरिलेट कराते हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले से हम मैग्नेट को कंसिडर कर लेते हैं, मैग्नेट के फॉर्मूले से इलेक्ट्रिसिटी को कंसिडर कर लेते हैं। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द गॉस लॉ इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑल्सो इन द केस ऑफ अ मैग्नेट। ओके क्लास, एक लास्ट टॉपिक हम लोग इसमें देखते हैं कि क्वेश्चंस एक देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन है यहाँ पे। नाउ विच इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट एंड विच इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा करेक्ट कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा है और कौन सा रॉन्ग कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा है। एक एक हम डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यू कैन सी देयर ऑन द पेज नंबर 183 इट इज गिवन देयर। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हम डिफाइन करते हैं। इन द केस ऑफ द फर्स्ट इट इज रिप्रेजेंटेड हियर ऑल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। जितने भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है सारे बाहर की तरफ हैं। व्हाट दैट मीन? जब हम इलेक्ट्रिसिटी का केस पढ़ रहे थे, अगर याद होगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी का केस पढ़ रहे थे, वी वाज डिस्कसिंग अबाउट द मोनोपोल्स। वहां पे हम सिंगल पॉजिटिव चार्ज को एक्सप्लेन कर रहे थे। उस केस में जो भी हमारी फील्ड लाइंस थी वो आउटवर्ड थी। इट मींस इफ द फील्ड लाइंस इज इन अ सर्कुलर डायरेक्शन टू द आउटवर्ड्स, अगर फील्ड लाइंस सर्कुलर डायरेक्शन में आउटवर्ड्स में है, इट मींस इट रिप्रेजेंट द सिंगल पोल विथ पॉजिटिव चार्ज। remember that if we are discussing the all electric field line outwards in a direction, then it will represent the single pole with positive charge. Okay, so here it represents a single pole which is not possible in the case of a magnetic field. मैंने पहले ही बताया था कि we cannot isolate the magnet. मैग्नेट को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, उसको ब्रेक करके दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। So this concept is a wrong. Why? Because of the isolation is not available in the case of a magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के केस में आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं होता है। Now let we talk about the figure number second. हम सेकेंड फिगर की बात करें, इसमें क्या दिया हुआ है? ये तो बहुत सिंपल सा है कि ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, सो दैट इज अ रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। ये हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सिंपल सा रॉन्ग है। सी केस,
what is happening here? If all the magnetic field lines are in a circular direction, this can be possible. If you remember that we have learned about the toroid. Toroid is, what is a toroid? It is the circular solenoid. अगर हम इसको circular solenoid को define करें like this, if we define in the form of the circular solenoid like this, then we can say all the magnetic field lines will circulated in the circular direction. Magnetic field lines हमारे circle के direction में फॉर्म होता है. इसका मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, मेडिकल डिपार्टमेंट से मैंने एग्जांपल लिया था. उसमें MRI करते हैं, उसमें पेशेंट्स को अंदर सेंड करते हैं, फिर उसे मैग्नेटिक रेजोनेंस की वजह से उसकी बॉडी का चेकअप होता है. तो वहाँ भी मैंने बताया था कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टोरॉइड. सो वी विल से दिस इज द करेक्ट पार्ट. इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी सर्कुलर. In this case, this is the wrong. Why? Because of the magnetic field lines can never be in a straight line. वो हल्का सा डिफ्लेक्शन होता है. लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलिनॉइड से बाहर निकलते ही हल्का सा डिफ्लेक्शन होगा, और डिफ्लेक्शन होकर के वो क्या फॉर्म करता है? सर्कुलर पाथ को फॉर्म करेगा लाइक दिस. डिफ्लेक्शन होके वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा. दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ. नॉर्थ से प्रोड्यूस होता है, साउथ की तरफ जाता है. तो वी कैन से दिस वन इज ऑल्सो अ रॉन्ग कंडीशन. Means magnetic field lines never be in a straight line. Now what is the last one? The last one is here, the magnet is kept on the poles between the two. We have made the magnet like this. ये भी पॉसिबल नहीं है. कभी भी मैग्नेट का एक एंड दूसरे एंड के साथ सपोर्ट नहीं करता, यानी एक एंड दूसरे एंड से के कांटेक्ट में नहीं रह सकता. सो वी कांट मेक द मैग्नेट लाइक दिस. सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके, so this was the topic all we have discussed today. Here we have discussed about the electrostatic analog. Before that we have discussed about the torque, and then we have discussed about the what is the similarities and what is the differences between the Gauss law in the case of the electrostatic field and magnetic field. And then we have done one question here, which one is the correct combination and which one is the wrong. Hope so you all have understand all the topics today we have discussed here this and you need to revise all these part. So we will meet on the next class with the last class of this chapter, and we will try to, hope so we will try to complete the whole chapter in the last class. So तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय.